Let's begin. So the topic of this short training is about how to position your content so that it shows your content in the AI search results, right? So there are 7 pillars, which is a 7-pillar framework, which includes concepts and the actions. Because see, I'm doing for you, again, this I call a mentee training guide. You all people are already working with me. So this is our internal training document. And I want you to understand the major 7 pillars which are required for your content to be shown in the AI search results, right? So now let's understand. The game has changed. Here's what you need to know now. क्या होता था? Search is no longer just Google, right? It's ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, and AI overviews. People are getting answers from AI. Correct? That is what we've been talking about. So, if your content isn't positioned to be surfaced, you simply don't exist in the world. Remember, यदि आपका कंटेंट उस लेवल का नहीं है तो चैट जीपीटी या किसी एआई सर्च में नहीं आ रहा, दैट मींस योर कंटेंट इज नॉट अप टू द ग्रेड. First, so now you have to understand the core 7 pillars to fix and understand the concept behind each and every one so that you do it very well. Now, we'll start with the 3 types of search optimization. आप सबने जाना होगा, SEO का नाम सबने सुना था, right? पहले SEO चलता था. SEO, search engine optimization. This was like how to rank better on Google or any search engine. Google, Bing के पेज और कैसे आना है वगैरह वगैरह. Then it slowly shifted towards AEO, which is answer engine optimization. That means आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसका एग्जैक्ट आंसर यदि उसको मिलता है वही एग्जैक्ट आंसर आपको उठा के दे देता था. यह इंटरमीडिएटरी चीज थी. अब यह हम लोग इसके आगे निकल चुके हैं. नाउ वी हैव रीच टू द GEO लेवल, which is generative engine optimization, where your answers are getting citing by the AI engines. मतलब आपका आंसर है चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, जेमिनी इत्यादि पे दिखाया जा रहा है. गॉट इट? SEO, AEO and GEO, right? So if again the opportunity is there are a lot of people still playing the SEO game, actually you have to understand the AEO and GEO game. This is your advantage, and if you don't take this advantage today, you will be lagging behind. Now let's understand the concepts. The first one is authority signals that AI trusts. What Sunita ji was saying, this AI doesn't evaluate content in isolation. As I told you, ऐसा नहीं कि आपने एक अच्छा content बोल दिया, लिख दिया, तो AI उठा करके दे देगा. AI सोचता है कि who is this person who has created this content? Is this person worthy enough? Is this person recognized? Right? And are they cited across multiple platforms? ऐसा नहीं कि एक ही platform पे. It is talking about multi-channel presence and multi-channel authority. तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है कि नहीं है. ऐसा नहीं कि आप एक ही चैनल पे काम कर रहे हो और वहीं से आपको सब कुछ आ रहा है. नहीं, ये जो एआई है ना, हर चैनल को डेटा को ले रहे हैं. So you have to understand that it has to be a multi-channel approach. So what you have to do? What are the action steps? Make your name niche consistent across LinkedIn, Instagram, YouTube, and website. So everywhere where you are digitally present, you have to do this. Pitch 2 podcast interviews or guest articles placement this month. Publish at least 3 pieces of content per week on a single core topic. Collect 3 detailed client case studies and publish them publicly. ये क्या है? आपको authoritative बना रहा है. As I said, you need to be authority in the domain so that AI understand that you are somebody who is having knowledge, expertise. That's why these steps are required. Fair? So मेरा take क्या इसमें है? You are not just creating content, you are building a reputation that AI can verify, index, and recommend. Treat every post as a trust signal. Fair? So ये पहला हो गया, आपको authority बनाना है. Now let's consider the second one, which is answer first content architecture. As I said, AI search is powered by question answering. आप AI से question पूछते हो, AI answer देता है. Correct? So ये क्या करता है? It scrapes the top of your content first. सबसे पहले आपके content का ना ऊपर वाला पोर्शन पढ़ता है कि आपने टॉप में क्या लिखा है. राइट? यदि आपने क्वेश्चन ऊपर लिखा और आंसर 3 पैराग्राफ नीचे लिखा तो आपके वो समझ ही नहीं पाएगा. तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद आपका आंसर होना चाहिए. सो आंसर फर्स्ट कंटेंट आर्किटेक्चर. सो व्हाट इट इज सेइंग? Rewrite your top existing post to lead with the answer in the first 2-3 lines. Change all your headings to question format.
एग्जाम्पल है, हाउ डू आई गेट अ हाई टिकट क्लाइंट ऑर्गेनिकली? Add FAQ sections to every article or guide you publish and use the bluff method. Yes, this is very nice. Bluff method. इसका full form है bottom line up front. मतलब answer first, explain second. पहले आप आंसर करो, पहले क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर करो, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो. So this is called bluff method, which is bottom line up front. Fair? Don't make AI dig for your answers. Put it on the surface. Make it impossible to miss. Now understand, AI क्या करता है? सबसे पहले क्वेश्चन देखा, आपका क्वेश्चन किसी ने पूछा है, उसको मैच कर लिया, इमीडिएटली वी सीक द आंसर. भाई आंसर कहाँ है? यदि नेक्स्ट लाइन में आंसर है तो आप टॉप पे आ जाओगे. यदि आपने आंसर नहीं दिया तो फिर इट विल गो टू समबडी एल्स पोस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज पॉइंट नंबर 2. लेट्स गो टू पिलर नंबर 3, व्हिच इज सिमेंटिक डेप्थ एंड टॉपिक क्लस्टर. नाउ अब मान लीजिए आपने एक टॉपिक पे एक ही कंटेंट लिखा है, तो क्या होगा? आपके कंटेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी या उसके हेडलाइंस मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कंपैरेटिवली कम होगी. लेकिन यदि आप टॉपिक क्लस्टर बनाते हो, जैसे एक ही टॉपिक के ऊपर आपने 4-5 पोस्ट डाले हैं या बड़ा पोस्ट लिखा है, तो क्या करता है? आपको वो बहुत सारे ऑप्शंस देता है, कहीं ना कुछ वर्ड्स मिलेंगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, राइट? सो इसीलिए कहता है एआई रिवाइड्स डेप्थ नॉट आइसोलेशन. एक ब्लॉग पोस्ट आप लिख दोगे ना बहुत बड़ा, तो शायद उतना नहीं काम करेगा जितना मल्टीपल छोटे छोटे अलग पोस्ट आप लिखोगे. सो इट हैज टू बी अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स ब्रोकन इनटू डिफरेंट स्मॉलर वन, राइट? सो इसका एक्शन स्टेप बोलता है, चूज वन प्राइमरी टॉपिक, write a comprehensive pillar page 2000 words, write 4 cluster articles that each answer a specific subtopic question, map out every question your ideal client might ask, then answer all of them across your content, and use semantic variations. Don't repeat the same keywords. Use related terms and concepts. समझ में आ गया क्लस्टर टॉपिक का क्या मतलब हुआ? सो मेरा टेक इसमें है, one great article is a flicker. A topic cluster is a spotlight that AI cannot ignore. यदि आपके पास एक क्लस्टर ऑफ सिमिलर टॉपिक्स हैं तो AI उसको इग्नोर नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के लेके आएगा, राइट? नाउ लेट्स गो टू पिलर नंबर 4, स्ट्रक्चर डेटा एंड स्कीमा मार्कअप. सो स्कीमा मार्कअप इज अ कोड दैट लेवल्स योर कंटेंट फॉर AI. अब AI समझता है कि आपका कंटेंट क्या है, क्या ये FAQ है, क्या आर्टिकल है, क्या ये अच्छा बंदा है, क्रेडेंशियल बंदा है, ट्रस्टवर्दी बंदा है, क्योंकि AI गेस नहीं करता है. AI आपके कंटेंट से आपकी एक वैल्यू डिसाइड करता है और वो खुद समझता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो कि नहीं हो. यदि आप उसके हिसाब से आप ट्रस्टवर्दी हो तो आप आपके कंटेंट को आगे लेके जाएगा. सो अगेन एक्शन स्टेप्स क्या है? ऐड पर्सन स्कीमा टू योर अबाउट पेज, नेम, टाइटल, सोशल प्रोफाइल, क्रेडेंशियल्स एक्सेट्रा. Add a FAQ schema to every guide or article. Add article schema to all blog posts, title, author, date published, and so on. Use rank math और Yoast, ये दोनों tools हैं to implement schema without coding. अभी आप इसकी जरूरत, मैं बोलूंगा चाहो तो आप लोग कर सकते हो. रैंक मैथ इज अ गुड, वेरी गुड टूल. एंड योस्ट, मैंने रैंक मैथ यूज किया है, योस्ट यूज नहीं किया है, बट यू कैन यूज दिस टू एड दिस इम्प्लीमेंट स्कीमा इनटू योर कंटेंट विदाउट कोडिंग. जो कहता है ना कि आपको AI कैसे निकालेगा, हमें नहीं पता होता है कि AI इसको कैसे रैंक करने वाला है, AI इसको कैसे समझेगा, whether it is FAQ, whether it is an article, whether it is a blog, whether it is a post. तो ये उसके लिए है. So my point is, schema is the difference between AI suggesting what you do and knowing exactly what you are. Yes, Dipanjan, tell me. So I understood what is this schema markup, Yeah. but how to define it for our content? Yeah, that is what I told you. इसके लिए आपको रैंक मैथ या वर्डप्रेस का यूज करना पड़ेगा. और मैं कहूंगा कि अभी if you have time you can start exploring it. मैंने रैंक मैथ थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, तो वो क्या करता है ना, एक आपको कॉन्सेप्ट देगा कि आप ऐसे लिखोगे तो इट विल, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, FAQ में क्या होता है, इट इज नॉर्मली बुलेटेड पॉइंट, राइट? यदि आप बुलेट पॉइंट करके लिखते हो तो बुलेट पॉइंट को वो कंसिडर कर लेगा FAQs में. भरसक आपका बुलेट पॉइंट FAQ नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग कुछ और लिखना चाहते हैं, उसको हमने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया, बट नॉर्मली inside the AI architecture, listicles with bullet points are
considered to be FAQs. Okay. तो वो चीज हमें समझना है कि हम कैसे लिखेंगे तो वो क्या समझेगा. That's the I difference. see. I see. Got it? Okay. Sure. क्योंकि एआई गेस नहीं करता है, एआई समझता है, उसको जो समझेगा जी. वो समझेगा. जी. ठीक है. Okay, let's go to point number 5, which is entity optimization. Again, AI thinks in entities. आप पर्सन हो, ब्रांड हो, कॉन्सेप्ट हो, तो क्या कहता है ना, you need to become a recognized entity in your niche. आपको AI को समझाना पड़ेगा कि मैं कुछ हूं. So when AI knows you as an entity, यदि AI को लगेगा कि आप एंटिटी हो, तो आपके रिस्पॉन्स को सरफेस पे लेके आएगा, जो यदि टॉपिक आपके साथ मैच कर रहा है. करेक्ट. आपका नाम भरसक वो नहीं लेके आएगा. एआई में कभी नाम नहीं आता कि किसने लिखा है, बट आपके कंटेंट को ऊपर लेके आएगा. राइट. सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूज योर फुल नेम, निश टुगेदर कंसिस्टेंटली एवरीवेयर. जैसे एग्जांपल दिया, मेरा एग्जांपल इसमें है आलोक कुमार हाई टिकट कोचिंग. मैं इसका एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, बहुत मजेदार है. राइट. क्रिएट अ डिटेल अबाउट पेज रिटन लाइक अ विकिपीडिया एंट्री, थर्ड पर्सन फैक्चुअल क्रेडेंशियलेटेड. गेट योर ब्रांड एंड नेम मेंशन ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स. शायद अभी ये पॉसिबल नहीं होगा, बट दैट्स ओके. कीप योर ब्रांड नेम, बायो एंड एक्सपर्टीज स्टेटमेंट आइडेंटिकल अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स. ये बहुत जरूरी है. आप अलग अलग कलर स्कीम, अलग अलग नाम, अलग अलग चीजें नहीं करिएगा. एक ही लैंग्वेज, एक ही. रिमेंबर, मैंने आप लोगों को बताया भी था जब हमारा पहला बैटल प्लान कॉल हुआ था, उसमें मैंने यही बोला था कि एक ही लैंग्वेज, एक ही कलर स्कीम हर जगह होना चाहिए, सो दैट योर ब्रांड आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड एंड एआई आल्सो टेक्स फ्रॉम देयर. राइट. सो माय टेक इज, when AI knows who you are, not just what you wrote, it becomes your unpaid spokesperson. ठीक है. Now there are 2 more points. Number 6 is multimodal and conversational formats. So AI क्या करता है? पुल करता है आपके टेक्स्ट से, आपके वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से, आपके पॉडकास्ट से, आपके इमेजेस से. So if you are creating only one format, जैसे मैंने पहले भी बोला था in general terms, कि मान लीजिए हमें एक ही फीड मिले रोज रोज तो हम भी बोर हो जाएंगे. एआई का भी वही कहानी है. एआई ऑल्सो वांट्स टू गेट फीड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. टेक्स्ट भी चाहिए, वीडियो भी चाहिए, पॉडकास्ट भी चाहिए, ग्राफिक्स भी चाहिए. वो हर जगह से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता है. तो जितने ज्यादा आपके फॉर्मेट्स होंगे, उतनी ज्यादा एआई के टच पॉइंट्स होंगे. राइट. मोर फॉर्मेट्स इक्वल टू मोर एआई टच पॉइंट्स. एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट. आपका ऑडियंस क्या ढूंढ रहा है, यू हैव टू राइट इन दैट लैंग्वेज, ताकि एआई को ज्यादा मेहनत नहीं करे. एग्जैक्टली वो चीज आप लेकर के उसके पास चले जाओ. राइट. सो इसमें एक्शन स्टेप्स क्या हैं? ट्रांसक्राइब ऑल योर एग्जिस्टिंग वीडियोस एंड पॉडकास्ट, पब्लिश देम एज ब्लॉग पोस्ट, एड डिस्क्रिप्टिव ऑल टेक्स्ट टू एवरी इमेज. पता नहीं आप लोग को ऑल टेक्स्ट पता है कि नहीं, मैं बताऊंगा. राइट कंटेंट इन नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज, द वे योर क्लाइंट वुड टाइप इनटू ChatGPT, एंड रीपर्पस एवरी आइडिया. वन कॉन्सेप्ट, ब्लॉग, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वीडियो, व्हाट्सएप. एक ही आइडिया को मल्टी चैनल वे में आपको करना है. सो माय टेक इज, every format you skip is a door you have left locked. The AI era rewards those who show up everywhere. Remember, now we are talking about everywhere. It's not a mono channel progress today. And last but not the least, this is my favorite one. ये मैं बहुत टाइम से बोलता भी रहा हूँ, EE80 कॉन्सेप्ट. ये गूगल का एक फ्रेमवर्क है जो सर्च इंजन में भी यूज करता था, और एआई भी इसको बहुत यूज करता है. इट स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस. Right? Google built this platform and this framework, and AI इस framework को सब जगह यूज कर रहा है. और यही एक ऐसा पॉइंट है जिसे जज करता है कि आपका कंटेंट कितना बढ़िया है. ये एक इंडिविजुअल स्कोर कार्ड है. राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दिस गिव्स यू अ नेचुरल एडवांटेज ओवर द जेनरिक एआई रिटन कंटेंट. आप जितना नेचुरली लिखेंगे, जितना बढ़िया लिखेंगे, yes, AI की हेल्प लेना बुरा नहीं है, but it has to be in your own voice and tone. Right? So now, again, the action steps are: add a detailed author bio with credentials, years of experience, and result to every piece of content. Share personal stories and lived experiences, not just real information, not just information. Display testimonials, case studies, media mentions, and certifications prominently. And ensure your website, if you have a website, उसमें about page, privacy, contact, सब कुछ होना चाहिए. So my take is, EE80 is not a checklist, it's a lifestyle. Every post either builds your authority or erodes it. Simple. Okay? That's it. So the 7-pillar checklist, just to remind you, पहला है authority signals, second है answer first, third is topic cluster, fourth is schema markup,
fifth is entity optimization, sixth is multimodal, and seventh is EEAT. So this is not a one-time exercise. You have to keep doing the checklist every week, because your content is going every week, right? So it will compound over time. Fair? So AI Search Authority, is built again over time. It is not gonna be happening through one viral post. Remember? So that's it. So this is what I wanted to tell you. And now I am open towards any question if you have.